بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ العمران میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو ساری دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کسی طرح اور کب بنایا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ یعنی خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ اور ابھی جو کعبہ شریف ہے اس کو تعمیر یعنی بنائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے یعنی بنایا جا چکا ہے؟ اور خانہ کعبہ کا رہسیہ اتہاس کیا ہے؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب ہم آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ دوستو، خانہ کعبہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو، خاص کر یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان مسلمان بھائیوں بہنوں کو اللہ تبارک و تعالی حج کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، ابھی کا جو خانہ کعبہ ہے وہ 405 سال پرانا ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 بار بنایا جا چکا ہے۔ میرے دوستو، خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا، جس طرح سے تفسیر کی کتاب کتبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو پیدائش کے بعد زمین پر جھگڑا فساد کرے گا اور بہت خون خرابہ ہوگا، جس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تصویر بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر رحم نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن جمال والا گھر تعمیر کیا جو 4 کندھوں پر بنا ہوا تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کے نام سے جانا گیا، جس طرح کا اللہ تبارک و تعالی سورۃ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے۔ میرے دوستو، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کی ایسی اہمیت ہے جیسے زمین پر کعبہ شریف کی اہمیت ہے۔ آسمان والے کا قبلہ ہے اور ہر روز 7000 فرشتے ان کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بمعمور کے طواف کرنے لیتا یا نماز پڑھ لیتا ہے، جس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 7 حج فرشتے بیت المعمور میں حاضر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے اور یہ آسمان پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ
ज़मीन पर भी इस बैतुल मामूर के जैसा मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, इसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ करें और मेरी इबादत करें। चुनावे फरिश्ते ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ यानी काबा शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। मेरे दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद ज़मीन पर उतारा। इस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ तो ना माई की तस्बीर और तकबीर सुन सकता हो और ना ही कोई इबादत गाह दे सकता, जैसे कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था, जिसको चारों तरफ फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हज़रत अलैहिस्सलाम की यह फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहाँ हम निशान बताएंगे वहाँ काबा बनाकर उसके चारों तरफ तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुँह करके नमाज भी अदा करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गाइड करने के लिए उनके साथ भेजा। चुनाते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस जगह पर लाए जहाँ के ज़मीन बनी थी, यानी इस जगह से सबसे पहले ज़मीन की झाग पैदा हुई थी और फिर वही झाग फैल कर पूरी ज़मीन बनी। उस जगह पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर को ज़मीन पर मारा तो सातों ज़मीन तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी। उन बुनियाद को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थर की मदद से भरा और उन बुनियाद पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन 5 पहाड़ों में कोहे लेबनान, कोहे तूर, कोहे जूद, हीरा वगैरह भी शामिल थे। इस तरह जब दूसरी बार बनाया जा रहा तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। हज़रत अम्मा हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिट्टी उठाकर लाती और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा को बनाते जाते। जब खाना काबा की तामीर काम पूरा हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ साथ फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और यह पहला घर है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तरफ मुँह करने, नमाज अदा किया करने और अल्लाह तबारक व तआला इबादत में लगे रहे। खाना काबा को तीसरी बार जिसने बनाया तो दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम के बनाने के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमज़ोर होने लगी, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने मिट्टी और पत्थर से खाना काबा को तीसरी बार बनवाया। जबकि कुछ मुफस्सिर कहा यह कहना है कि हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खान काबा की मरम्मत का काम किया, उनकी तामीर नहीं की। प्यारे दोस्तों, जब बात करते हैं खाना काबा को चौथी बार किसने बनाया तो दोस्तों खाना काबा को चौथी बार उस वक्त बनाया गया जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान का अज़ाब भेजा। तूफ़ान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई और कुछ रिवायत के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और यह जगह सिर्फ एक ऊंचे और लाल टीले की तरह रह गई थी। इस तूफ़ान के बाद जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को बनाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चौथी बार खाना काबा को किस तरह बनाया, इस वाक़यात के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी हज़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की मंजर
वीरान जमीन पर पहाड़ों के बीच छोड़ दिया, जहाँ पर कोई इंसान, आदमी ना मौके निशानी ना था और ना ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक लाल रंग का ढीला था। उस वक्त हजरत इब्राहिम सलाम ने अपनी बीवी और अपने बच्चों को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफ़र किया। इसके बाद जब दूसरी बार हजरत इब्राहिम सलाम ने अपने खानदार से मिलने के लिए फिलिस्तीन से मक्का आए, तो जब हजरत इस्माइल सलाम ने कुर्बानी का वाक़या पेश आया और तीसरी बार हजरत इब्राहिम सलाम मक्का तशरीफ़ लाए, तो हजरत इस्माइल सलाम की शादी हुई और उस वक्त हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल हो चुका था। चौथी बार जब हजरत इब्राहिम सलाम मक्का में तशरीफ़ लाए, तो मुलाकात अपने बेटे हजरत इस्माइल सलाम ने ना हुई। फिर पांचवी बार जब हजरत इब्राहिम सलाम मक्के में तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम सलाम को काबा शरीफ को बनाने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम सलाम ने हजरत इस्माइल सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं, यानी इस घर को बनाऊं। तो हजरत इस्माइल सलाम ने अर्ज़ किया कि ज़रूर कि मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चुना रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियाद का निशान हजरत इब्राहिम सलाम ने बताया। उस पर हजरत इब्राहिम सलाम और हजरत इस्माइल सलाम ने बनाना शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो पुराने बुनियाद दिखने लगी, जिन पर हजरत आदम सलाम ने काबे शरीफ को बनाया था। हजरत आदम सलाम के बनाए हुए बुनियाद के दिख जाने के बाद खाना काबा की तामीर शुरू हुई। हजरत इब्राहिम सलाम अपने उस बुढ़ापे में एक कारागिर और हजरत इस्माइल सलाम एक मजदूर की हैसियत से बनाने लगे। कोई लुबनात, कोई हीरे, कोई अबुल कैसे, कोफे सफ़ा और कोहे मरवा, इस पांचों पहाड़ों से हजरत इब्राहिम सलाम पत्थर उठाकर लाते। हजरत इब्राहिम सलाम काबे में लगाते। फिर हजरत इब्राहिम सलाम की निशानदेही से जबले अबी कुव्वत से 2 पत्थर मिले। हजरत इब्राहिम सलाम उन पत्थरों को उठाकर लाए। उनमें एक पत्थर हजरे सवाद था और दूसरा पत्थर मकाम इब्राहिम के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्तों, मकाम इब्राहिम वह मशहूर पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम सलाम ने काबे की दीवारें बनाई। जैसे जैसे खाना काबा की दीवारें ऊंची होती जाती, वैसे वैसे वह पत्थर भी हवा में ऊंचा हो जाता। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरे अवध जब जन्नत से उतारा गया तो उसका रंग दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद, फिर इंसानों को गुनाहों के उसी काला कर दिया गया। और रिवायत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अवद और मकाम इब्राहिम जन्नत के पत्थरों में से 2 पत्थर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी नूर की निशानी को बुझा दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला उनकी नूर की रोशनी को ना बुझाता तो यह पूरब से पश्चिम तक सबको रोशन कर देता। खाना काबा को 5वीं बार कौम आमल का और 6ठी बार कबीला ए जुरहम ने बनाया। कबीला ए जुरहम ने से जिस शख्स ने काम किया उसका नाम हर्ष बिन मदादे सगर था। खाना काबा को 7वीं बार बनाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक खानदार में से एक बुजुर्ग है जिसका नाम हजरत कुसा बिन किला था। उन्होंने खाना काबा को नए सिरे से बनाना शुरू किया और एक बेमिसाल उसका इमारत बनाई। दोस्तों, खाना काबा को 8वीं बार बनाने की ज़रूरत उस वक्त पड़ी जब कबीला कुरैश की सरदारी में एक ज़बरदस्त सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें बहुत कमज़ोर हो गई। तो एक मशवरे के बाद एक फैसला किया गया और खाना काबा को कबीला कुरैश ने फिर से बनवाया, जिस तामीर से नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते अक़दर में
भी शिरकत फरमाई। उस वक्त रकम कम होने की वजह से कुरैश की तामीर में हातिम काबा को शामिल नहीं किया गया था। खान काबा को नबी बार उस वक्त बनाया गया जब यदि फौज की पत्थरबाजी की वजह से खान काबा की दीवारें कमज़ोर हो गई तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने हातिम काबा, जो कि कबीला कुरैश के तामीर में शामिल नहीं किया गया था, उसको भी शामिल करने बुनियाद इब्राहिम पर खान काबा को नए सिरे से बनाया गया। खान काबा की 10वीं तामीर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने नायब हाजिल बिन यूसुफ, जो कि एक जालिम हुक्मरान था, इसके 74 हजरी में फिर से खान काबा को फिर से कुरैश वाली तामीर से मुताबिक बनवाया। इसके बाद खलीफा हारून हुकूमत पर बैठा तो उसने खान काबा को गिराने का फैसला किया और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तारीम के मुताबिक खान काबा को तामीर करना चाहा, लेकिन तमाम अबू यूसुफ ने यह कहकर उसे रोक दिया कि अगर यही तरीक़ा रहा तो हर आने वाले हुक्मरान मशहूर होंगे के लिए खान काबा को गिराकर नई तामीर करवाए और इस तरह लोगों को दिलों में इस घर की अमजद कम होती जाएगी। फिर 1040 हजरी में सल्तनत उस्मानिया ने सुल्तान मुराद बिन अहमद खान शाह कुश्तियानिया ने हजरे असवद वाली जगह से अलावा सारी इमारतें की बुनियाद हज्जाज के मुताबिक तामीर करवाया। तामीर का काम 6 महीने के अंदर मुकम्मल हुआ और उसने खान काबा के अंदर संगे मरमर का पत्थर लगवाया और बहुत ही खूबसूरत छत बनवाई और बाहर की दीवारें संगमरमर से चुनी गई और बहुत ही कीमती गिलाफ खाना काबा पर डाल गया, जिस पर कलमा ए तैयब लिखा हुआ था और सुनहरे लफ्ज में सुल्तान का नाम भी लिखा हुआ था। इस तरह सल्तनत उस्मानिया की तामीर के बादशाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने सन 1417 में काबा शरीफ को नए सिरे से बनाने का काम शुरू किया और अभी जो खान काबा है वह कमोबेश 405 साल पुराना तामीर किया गया है, क्योंकि इमारती 1040 हिजरी में बनी और अब 1445 हिजरी चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह मालूमात वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।